اور جو آج سن رہے ہیں آنیسٹلی آج کی سورہ کو بھی اگر ہم سمجھ جائیں گے، انڈرسٹینڈ ہم کر جائیں گے نا، تو ہمارے لیے اس دنیا میں ہم شیطان سے بچنے کے لیے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کا تو ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جتنا اس کو سمجھیں گے اتنا ہی سمندر میں غوطے لگاتے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرمانا، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ کی طرح ہم اپنی کلاس کا آغاز پہلے حدیث شریف سے کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 20014۔ بہت ڈر والی بھی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اکثر ہم بات کرتے ہیں نا غیبت کے بارے میں کہ غیبت نہیں کرو، مردہ بھائی کا خون جو گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن یہ حدیث پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آنیسٹلی زبان سے لفظ نکالتے کسی کی غیبت کرتے ہوئے نا 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، ابھی ان کے دل میں نہیں اترا نا، زبان سے ایمان لائے ہو لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جیسے ہم آج کل آپ دیکھیں کلمہ تو ہم سبھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے نا، لیکن جیسے پریکٹسنگ مسلمان آپ کو کتنے ملتے ہیں، اور کہنے کو تو ہم مسلمان نہیں ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہماری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والا یہ نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ یہ بات میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اسلام ظاہر پہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے ہمارے جوارے پہ، جیسے ایمان جو ہوتا ہے نا، جیسے دل کی حالت ہوتی ہے، وہ بیج ہوتا ہے جو ہم نے بویا ہوتا ہے، اور جب وہ پھول بنتا ہے، جب وہ کھلتا ہے نا، تو ہمارے پورے جوارے پہ نظر آتا ہے۔ ہمیں دیکھ کے کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی، لیکن ان کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، کیونکہ اگر ان کی آپ، اور ایک نمبر 1 یہ کہا کہ ان کی غیبت مت کیا کرو، دوسرا ان کی عیوب، ان کے جو عیب ہیں وہ بھی تلاش مت کیا کرو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جس کے عیوب تلاش اللہ کرنے لگ جائے اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی گھر میں بیٹھے آپ، گھر کے لوگوں میں بندہ رسوا ہو جاتا ہے، اپنی فیملی میں رسوا ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں میں رسوا ہو جاتا ہے، اور یہ ہو کے رہنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا دیکھی جائے گی۔ اگر آپ نے ایسا کبھی کیا ہے، آپ اب سوچیں اس بات کو، کبھی کسی کی غیبت کی ہے اور کبھی کسی کے بارے میں انفارمیشن ایسی غلط کلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کو رسوا کر سکے، یا اس کی بدنامی ہو جائے، یا اس کے بارے میں غلط بات دوسروں سے کی ہے، تو اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ مرنے سے پہلے یہ ہو کے رہے گا کہ وہ بندہ اپنے گھر میں رسوا ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت بہت سوچنا چاہیے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، کیونکہ دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیشہ اس جسٹ اے ریمائنڈر، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، انسان ہے نا، تو انسان کا روٹ ورڈ ہی نسیان سے ہے، تو وہ پھر انسان بار بار بھولتا ہے، اور قرآن بار بار ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے، حدیث میں بار بار ریمائنڈرز آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ تو اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جی ہم سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ فلق کی تھی، ہے نا، تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھی، اور دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، مطلب کہ دو حفاظت کرنے والیاں، یہ دو صورتیں جو ہیں وہ انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔
اور کس سے حفاظت کرتی ہیں؟ اب دیکھو سورۃ فلق تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا ساری ڈیٹیل. اب سورۃ ناس میں آپ دیکھیے کہ وہ ایسے دشمن سے حفاظت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ صورتیں جو ہیں یہ دعا ہیں. تو ایسے دشمن سے دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس سے حفاظت، اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جو ہمیں نظر نہیں آتا. کیونکہ دیکھیے ایک دشمن وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے، ہم پھر بھی بیک آف ہو جاتے ہیں، ہم پھر بھی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں نا. لیکن جو دشمن نظر ہی نہیں آئے اس سے اب کیسے حفاظت کریں؟ اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم سب سے پہلے تو تھوڑا سا بیک میں جاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا تھا تو پھر کیا ہوا، اور پھر جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور پھر آج کل دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا فتنے کا دور ہے، سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، بچے اسلام سے بھاگ رہے ہیں. آج کل میڈیا پہ دیکھو کہ مسلمان بچے کیسے کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہم سنتے رہتے ہیں. اور ایسی ایسی خبریں، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ جان نکل جاتی ہے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب آج آپ نے بہت غور سے یہ حفاظت جو شر کا لفظ ہے نا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، ہم توحید کو سمجھیں گے. جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ کون ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا تھا تو کیا چیز ہمیں بتائی تھی. ہم نے اس دنیا میں جو رہنے آئے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں ہم ویکیشن پہ جاتے ہیں تو ویکیشن پہ جب ہم جاتے ہیں، فار ایگزامپل کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ سردی ہے، تو ہم اپنے کپڑے ایسے ہی رکھیں گے نا جو سردیوں کے ہوں گے، اور ہم اپنی ضرورت کی ساری چیزیں رکھیں گے کہ ہمیں یہ بھی ضرورت ہوگی، یہ بھی ضرورت ہوگی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بس منہ اٹھایا اور ہم چلے گئے. سارا کچھ کرتے ہیں نا، ٹکٹ بائی کرتے ہیں، پہلے اس کا ارینج کرتے ہیں سارا، پھر اس کے بعد سامان باندھتے ہیں، پھر وہاں پہ جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا نا، تو ایسے نہیں بھیج دیا. اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب اس کے اندر پھونک، اللہ سبحانہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. اور پھر اس کے بعد کیا کہا تھا؟ کہا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرے. فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ ساری سورۃ البقرہ سے آپ مختلف مقامات پہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور یوزلی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے. اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں. وہ اسموک لیس فائر سے بنا ہوا ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نے کیا کہا تھا کہ اچھا جا، تو نکل جا یہاں سے، تو دفع ہو جا. اب دیکھیے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کے لیے ہوا کو وہاں پیدا کیا تاکہ وہ اچھے سے رہ سکے. اب جب آدم اور ہوا وہاں پہ خوشی کے ساتھ رہ رہے تھے، آدم علیہ السلام نے تو خود اپنی آنکھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تھا نا وہاں پہ، اور وہ سارا اس کو تو جنت میں بھیج دیا تھا. اس کے باوجود بھی شیطان نے، کیونکہ اس کی دشمنی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، تو وہاں پہ آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکایا. اور آدم علیہ السلام کو کہا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جنت میں بھیجا نا، جیسے ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ساری جنت تمہارے لیے، ڈو وٹ ایور، لیکن اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. بالکل اسی طرح سے جیسے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پوری دنیا تم لوگوں کے لیے، لیکن یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، دیکھو ان کے قریب نہ جانا، ان سے تمہیں نقصان ہوگا. بالکل اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا. اس نے یہ کہا کہ یہ درخت کا جو منع کیا ہے، اس کا اگر تم پھل کھا لو گے تو تم ہمیشگی کی زندگی پالو گے، اور تم فرشتوں میں فرشتے جیسے ان کی بھی زندگی ہوتی ہے ہمیشہ کی، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ گے.
تو وہ آدم علیہ السلام اور ہوا دونوں اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا. اب جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو پہلی چیز کیا ہوئی تھی کہ ان کے کپڑے اتر گئے. اب دیکھیے میں یہ بات بہت دفعہ کہتی ہوں کہ پھل کھایا تھا تو پیٹ میں درد ہونی تھی، رائٹ؟ لیکن ان کے کپڑے کیوں اترے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کیا ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ انسان کو ننگا کرے گا. یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آج کی جو عورت ماڈرن ہونے کے چکر میں جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں اس کو خود سے کلیئر ہو جائیں گی. اچھا، اب جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سب زمین پہ اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور اب جب تم زمین پہ اترو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی. یہ کیسے کہا تھا؟ کیونکہ دا مومنٹ آدم علیہ السلام کے وہ کپڑے اترے اور ہوا کے تو انہوں نے جنت کے جو پتے تھے نا وہ اپنے اوپر ڈالنے شروع کر دیے، کیونکہ ایک فطری حیا تھی. اور فوراً ہی آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب یہاں پہ ایک سوال کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور نبوت عطا کر دی، رائٹ؟ اور شیطان نے بھی تو اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو اس کو کیوں ابلیس کو کہا کہ جا تو نکل جا یہاں سے اور تو مردود ہے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے جیسے ان سے غلطی ہوئی فوراً اللہ سے معافی مانگی. یہی چیز ہے بس کہ ہم انسان ہیں نا، غلطیاں ہوں گی، کوشش کے باوجود غلطیاں ہوں گی، لیکن دا مومنٹ انسان سے غلطی ہو جائے اور اس کا مائنڈ سے ایک دم سے اس کو یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ او مائی گاڈ مجھ سے غلطی ہوگی، اور وہ توبہ کرتا ہے، وہ پلٹتا ہے. توبہ کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، اس کے گناہ بے شک زمین سے آسمان تک کے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا کے اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب یہ کہا تھا نا کہ تم مجھے موقع دے، میں تیری بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک بھی دنیا قائم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کہا تھا نا، وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار آتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جا تو نے جو کرنا ہے کر، میں بھی انسان کو بار بار معاف کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. اب یہاں پہ یہ آپ کو سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سورہ کو تاکہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. اب شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ جنات میں سے تھا، رائٹ؟ اور وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ جو فرشتے ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے مقرب لوگوں میں تھا. لیکن اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. دیکھیں، ایک حکم کی نافرمانی کی اور کہاں سے کہاں چلا گیا. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر اللہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں معاف کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو پھر ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ اچھا تم نے تو دیکھا ہے، جنت بھی دیکھا ہے ہو، تم نے دیکھا تھا جب تمہیں کریٹ کیا تھا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور سارا کچھ وہ معاملہ تو تم نے دیکھ لیا. اب جو دنیا میں اور تمہارا امتحان ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور ہم نے سنا بھی ہے، اور سورۃ ملک میں بھی آپ دیکھیں پہلی دوسری آیا میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ اچھا تم جاؤ، جو تمہارا تم نے تو دیکھ لیا، اب جو تم عمل کرو گے اس کے مطابق تمہارا حساب ہوگا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز دے کے دنیا میں بھیجا. کیا کہا تھا؟ ہدایت
मेरी तरफ से आएगी। पढ़िए सूरत अल बकरा जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। मेरी तरफ से आएगी, जिसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, वो कामयाब हो जाएगा, जिसने नहीं किया वो फिर दूसरी तरफ जाएगा डेफिनेटली। अब क्या था, अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलसल नबी भेजे, रसूल भेजे, किताबें भेजी, सहीफे भेजे, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, और हमारे पास कुरान पाक अल्लाह की किताब महफूज है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक एक चीज़ हमें बता दी कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। दुनिया में रहना आसान नहीं है, दुनिया इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो औलाद दी, जो हस्बैंड है, माँ बाप हैं, जीना मरना, एक एक सांस लेना, हर चीज़ अल्लाह की नेमतों में से नेमत है। और अल्लाह ही सुब्हाना ताला ने कुरान में कहा कि ये सब नेमतें जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने दी है, यही हमारा इम्तिहान है। हमारी औलाद हमारा इम्तिहान है, हमारे खामंद, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, सभी के साथ हमारी आजमाइश लिखी हुई है। ये तो वो है ना जिनको हम सामने देखते हैं और हमें पता है कि अच्छा ये हक है, हम इनको कैसे पूरा करेंगे, और कभी इनसे कभी तकलीफ होती है तो हमने सब्र कैसे करना है, हमने अल्लाह को राजी कैसे करना है। लेकिन वो दुश्मन जिसको हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था ना कि ये शैतान इब्लीस के बारे में कि जिन्नात जो हैं वो तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम नहीं देख सकते। बता दिया था कि हम नहीं देख सकते उनको अपनी आंख से, राइट। और फिर हमने करना क्या है, हम जब कपड़े चेंज करते हैं, जब हमारा ऑरा जो है वो एक्सपोज होता है, दैट इज द टाइम जब शैतान जो है वो हमला कर सकता है, वो उसको स्नैच कर लेता है बंदे को। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़े चेंज करो। बाथरूम में जाने की दुआ बताई, हर चीज के लिए, पानी पीने की दुआ है, खाना खाने की दुआ है, घर से निकलने की दुआ है, बाजार में जाते हो दुआ है, हर जागने सोने की दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी प्रोटेक्शन का वादा किया है कि जो अगर तुम अल्लाह की प्रोटेक्शन में आते हो, अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें संभाल लेंगे, तुम्हारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान का काम जो है वो है ही ये। वो देखिए अल्लाह सुब्हाना, हमने पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं मोमिन बंदे जो हैं वो सुबह से रात तक अपनी करवटों पे भी अल्लाह सुब्हाना ताला का जिक्र करते हैं। हम लोग ये सोचते अच्छा सुबह भी ये जिक्र कर लिया था, अब रात को भी अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र कर लिया, नमाजें भी पूरी पढ़ी थी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान भी पढ़ लेते हैं, तहज्जुद में भी उठ जाते हैं, तो काफ़ी है। लेकिन आज की सूरा के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं, एक लम्हा भी हमारी जुबान अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं होनी चाहिए। द मोमेंट शैतान को ये पता चलता है, उसको फील कर लेता है, क्योंकि वो करीन के साथ है, करीन जो है वो हमारे साथ रहता है, उसको हमारा पता होता है। द मोमेंट हमारी जुबान चुप होती है, अल्लाह का जिक्र नहीं होता, उस दिल में, उस कल्ब में, उस सदर में शैतान फौरन आके वसवसा डालना शुरू कर देते हैं। और आप देखिए हमारी पूरी जिंदगी जो है ना, वो वसवसा जो होता है, वसवसा कहते हैं बुरे ख्यालात। तो ख्यालात जो होते हैं ना, आप देखिए दिमाग हमारा कभी चुप नहीं होता, मुसलसल ख्यालात चल रहे होते। अगर आपके ख्यालात नेक हो जाए ना, ख्यालात मुसलमान कर लें, सबसे आसान। जिसके ख्यालात मुसलमान हो गए उसकी जिंदगी संभल गई, और जिसके ख्यालात खराब हो जाते हैं ना, आपका अलार्म बज जाना चाहिए। द मोमेंट आपको कोई बुरा ख्याल आए तो आप लोगों को ये पता लग जाना चाहिए कि नाउ शैतान इज वर्किंग ऑन मी, क्योंकि आज हम देखेंगे कि शैतान का एक्सेस जो है वो हमारे दिल, हमारे कल्ब पे नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने सदूर तक उसको रखा है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सदूर एंड कल्ब, इंशाल्लाह आज हम वो भी देखेंगे। अच्छा जी, दूसरा इसके शान नुज़ूल के बारे में देखते हैं कि इन सूरतों का शान नुज़ूल जो है, बाज़ ने कहा ये मक्की है, बाज़ ने कहा कि ये मदनी है। हम दोनों राय का ही एहतराम करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम इसके बारे में डिटेल में बताया था कि बाज़ सूरतें ऐसी, सूरत इखलास है, सूरत अलहम्द जो शुरू में हम फातिहा पढ़ते हैं,
بعض सूरतें ऐसी थी जो रिपीटेडली रसूल अल्लाह पे नाजिल हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सूरत नास एंड फलक के बारे में जब वो मक्का में थे, जब इस्लाम अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देनी शुरू की तो दुश्मन थे पूरे के पूरे, और पूरा खानदान जो जिनका एक बच्चा भी मुसलमान होता था, किसी का बीवी, किसी का हस्बैंड, फैमिली में ऐसी चीजें हो रही थी, और वो दुश्मनी किस तरह से बढ़ रही थी। उस वक़्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये दोनों सूरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की थी कि इस तरह से अपनी प्रोटेक्शन करें, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज़ सहाबा को बताई थी और आज हम तक है। उसके बाद रसूल अल्लाह जब मदीना जब गए हैं, उसके बाद मदीना में जाके उसके बाद मदीना में जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुनाफिकीन से पाला पड़ा, उस वक़्त दोबारा से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सेम सूरतें आके रसूल अल्लाह को कही कि ये सूरतें आप पढ़ें और अपने आप को प्रोटेक्शन में अल्लाह की दे दें। और तीसरी दफ़ा जब रसूल अल्लाह पे जादू हुआ था, उस वक़्त भी यही सूरतें कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया था कि इनके साथ अपने ऊपर दम करें और ये सूरतें पढ़ के अपने आप को अल्लाह की प्रोटेक्शन में दे दें। आज हमने यही सीखना है कि हर तरह दुनियावी लिहाज से देख लें, और आप ऐसी दुनिया जो अनसीन और अनसीन वर्ल्ड है, सबसे बचने के लिए यही दो सूरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। हज़रत हसन हुसैन के ऊपर इन्हीं सूरतों को पढ़ के रसूल अल्लाह दम किया करते थे। सुबह शाम की दुआओं में आप देखें, सुबह के टाइम पे जब पढ़ते थे तो 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फिर क्या होता था, हाथ पे ऐसे छू 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 ऐसे करते हैं ना, वेट थोड़ा सा होता है, इस तरह से करके पूरा अपने ऊपर ऐसे हाथ फेर लेते थे। और ये दम जो है ये करना इस्लाम में जायज़ है। अच्छा, दूसरा रुकिया का बात है कि जैसे इन दोनों सूरतों से रुकिया भी किया जाता था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया भी है, क्योंकि हज़रत आयशा की वो हदीस भी आपको याद होगी कि आखिरी वक्त में जब रसूल अल्लाह की तकलीफ़ बढ़ रही थी तो हज़रत आयशा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ती थी, और बरकत की खातिर रसूल अल्लाह के हाथ पे जैसे वो फूंक करके तो वो उनका हाथ पूरे जिस्म पे वो फेर देती थी। तो इसी तरह से इमाम इब्न क़य्यम जोज़ी लिखते हैं कि सहाबा जो थे वो बेहतरीन फसील थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फरमाबरदारी करनी छोड़ दी, और उस तरह से लोग फरमाबरदार ना रहे तो लोगों ने सूरत नास और फलक से रुकिया करना भी छोड़ दिया। रुकिया आपने पता है, हम अक्सर लोग पूछते हैं रुकिया शरिया जिसको कहते हैं ना, इसलिए कि अरब जो थे इस्लाम आने से पहले वहाँ पे दम भी किया करते थे और रुकिया भी किया करते थे, ये दोनों चीज़ों से वो वाकिफ़ थे। रुकिया शरिया इसलिए कहते हैं कि जो इस्लाम में रसूल अल्लाह ने जिसकी इजाज़त दी थी उसमें सारी की सारी जो आयात हैं वो उसमें कोई शिर्क या कलमात नहीं है, वो सारी की सारी या तो कुरान से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से हैं। तो इसलिए रुकिया शरिया पढ़ के भी दम किया जाता है ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिफाजत में ले ले। अच्छा जी, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉर्निंग में करते थे सुबह के अस्कार में, फिर रात में 2 दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा जब वो बिस्तर पे लेटते थे, तीसरी दफ़ा उसमें कुल हु अल्लाहु अहद भी शामिल होता था, सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ा करते थे, सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयात भी। तो आप देखिए कि किस तरह से हम जैसे बंदों को कितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे प्रोटेक्शन लिया करते थे। और इसके बाद ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें पढ़ा करते थे। अच्छा जी, अबू सईद खुदरी कहते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात से और ईवल आई से पनाह लेने के लिए सूरत फलक और सूरत नास की तलावत किया करते थे। इमाम जोज़ी लिखते हैं कि इंसान को अपने खाने पीने से ज़्यादा अपनी हिफाजत की तलब होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली आया की तरफ आते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल कह दीजिए, कहो कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ,
बिरब्बिन नास, रब से जो लोगों का रब है। अच्छा, अब रब का सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि रब का तारुफ देखेंगे, हम तौहीद को जानेंगे इंशाअल्लाह। टाइम जितना होता है मैं कोशिश करूँगी कि 1 घंटे में आप लोगों की ये क्लास कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा जी, सूरत तौबा की आयत नंबर 31 और सूरत आल इमरान की आयत नंबर 108, अगर आप इसको देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें रब का कैसे बताया कि उन्होंने यहूद जो थे अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना रखा है, और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ना ही तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बनाओ। क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? अब यहाँ पे इस आया के बारे में आता है कि एक सहाबी थे जो पहले यहूदी थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह, जो यहूदी हैं वो तो अपने जो उलमा हैं और उनके दरवेशों उनको रब नहीं कहते हैं। तो इस आया में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि क्या वो अपने उलमा और अपने दरवेशों की अतात नहीं करते कि जिस चीज़ को वो हराम कह दें वो हराम कहते हैं, जिसको वो हलाल कह दें वो हलाल कहते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, एक एक चीज़, एक एक बात जो है ना, वो ऐसे लगता है एक मोती नहीं होता, एक हीरा होता है जिसमें शाइन होती है, जो खूबसूरत होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बताते हैं कि अतात। हम देखिए, हम कलमा गो हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को ना कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जब अतात की बात आती है तो हम किसकी अतात करते हैं? हाँ नहीं, ये भी बड़ा मुश्किल है, अभी तो नहीं, अभी नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। देखो, अब मैं नमाज तो पढ़ ही लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्लासेस भी ज्वाइन कर ली हैं, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होता। कोई भी, मैं कोई अभी नेम नहीं ले रही हूँ, अब कोई भी चीज़ देख ले जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है। क्यों? क्योंकि अतात जो है ना, वो फिर हम अपनी कल्चर की करते हैं, अतात हम अपनी दोस्तों की करते हैं, अतात हम अपने मीडिया की करते हैं, अतात हम फैशन की करते हैं। तो कहाँ पे जाती है बात? यही अब आज की हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना, वो वर्ड्स दोबारा से सुन लीजिएगा। तो अब सबसे पहले तो आप देखिए कि ये सूरा जो है वो शुरू होती है कुल से, और आपको ये पता है कि ये सूरा जो है कुल से स्टार्ट हुई, ये दुआ है, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास और फलक, दोनों ही दुआ है। सबसे पहले हम देखें कि कुल से शुरू हुई है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मुखातिब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि कुल। तो अगर जब रसूलुल्लाह वापस आए थे और ये जब सूरा लिखवाई है या सहाबा को सुनाई है और बताई है, तो उस वक़्त रसूलुल्लाह स्टार्ट कर सकते थे ना आउज़ु बिरब्बिन नास से, कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब से। लेकिन रसूलुल्लाह ने एज इट इज़, जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वही एज इट इज़ कुरान में है। तो इससे भी पता चलता है, मुफस्सिरीन ने इतनी खूबसूरत बात कही कि कुरान अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से बताया, उसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको महफूज करवाया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे कुल कहना, अब देखिए कि ये कह कौन रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ना कि अल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह की पनाह में आ जाओ, मेरी पनाह में आ जाओ, मैं बचा लूँगा। द मोमेंट हम लोग ये इवन सोचते भी है ना, हम इरादा ही करते हैं कि हम कुल आउज़ु बिरब्बिन नास और फलक से अल्लाह की हिफाजत करेंगे, तो हम सवाब कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम समेना व अता, अल्लाह ने कहा कुल, हमने कहा कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, है ना? तो हमने वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा और हमने मान लिया। जैसे कि सूरत अल-बकरा में मोमिनीन की अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सिफत बयान करते हैं कि वो कौन थे?
क़ालू समेना व आताना गुफ़रानका रब्बना वइलैकल मसीर। तो वहाँ पे इतनी खुशी होती है ना कि ओ माय गॉड माशाल्लाह, हम इस लेवल पे कि अल्लाह ने कहा कुल तो हमने पढ़ ली कुल, और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम अपनी हिफाजत में ले लेंगे। जब आप ये दुआ पढ़ते हैं ना, तो आप ये देखिए कि इसमें 3 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, रब, मालिक, इलाह, 3 अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही हमें बताते हैं कि ये सिफ़ात जो हैं, आप ये देखिए कि जब हम इन्हें पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिफाजत में आते हैं, हमारा यकीन होना चाहिए, कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मुझे बचा लेगा, अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल लेगा। मैं पूरे यकीन के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने कहा है। देखिए कुरान पाक में जितनी दुआएं हैं ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ नबियों की दुआएं हैं जो आई हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जिसकी जो भी मुसीबत है, जो परेशानी है, उसके मुताबिक जो वो दुआ मांगते हैं, तो वो दुआ जो जब वो करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिफाजत में ना ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अब यहाँ पे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। रब किसको कहते हैं? कि क्या हमें अल्लाह को पुकारने की ज़रूरत उस वक़्त होती है जब हम गमगीन होते हैं, जब हमें परेशानी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है। ऑफ कोर्स उस वक़्त तो हम रो रो के दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दुआ, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने की हर लम्हा ज़रूरत होती है। मैं जिस जगह बैठी हूँ, जिस जगह मैं ज़मीन के जिस टुकड़े पे भी हूँ, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सांस लेती हूँ, ऑक्सीजन है, रोशनी है, अंधेरा है, दिन है, रात है, चलना है, फिरना है, देखना है, हर चीज़ का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मेरा जिस्म मेरा है, लेकिन उसका मालिक हकीकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी हमें जवारे दिए, हमारे हाथ हैं, आंखें, कान, नाक, जो चीज़ें भी है ना, हर एक का हिसाब अलग-अलग है, हर एक का काम भी अलग है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नेमतें अता की हैं, जिस नेमत को जिस तरह से इस्तेमाल करने का कहा है, अगर हम वैसे इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आंखें दी है ना, हम उनको गलत चीज़ें देखने में इस्तेमाल करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाँव दिए हैं, हम ऐसी जगहों पे जाएं जो अल्लाह की नाफरमानी की जगह हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाथ दिए हैं, हम उनसे ऐसी ऐसी चीज़ें यूं कर के आगे गुजार के देखें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है, तो यही चीज़ें हमारे लिए अजाब बन जाती हैं। इन्हीं को कहते हैं कि नेमतें हमारे लिए कब अजाब बनती हैं, कब हमारे लिए आजमाइश बन जाती हैं। और इसके अलावा अच्छा जी, अब हम जब दुआ मांगते हैं, सबसे पहले तो हम देखें कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर होकर ये दुआ मांग रहे हैं, तो दुआ क्यों हम मांगते हैं? जब हम किसी से सवाल करते हैं, अब देखिए कि जब भी कोई किसी से सवाल करता है, आपकी कोई ज़रूरत होती है और बहुत मुश्किल में आ गए, बहुत मुश्किल में आ गए, आपको ये यकीन होता है कि अच्छा मैं इनसे मांगूंगी ना तो ये मेरी हेल्प कर देंगे, वो तो फिर इंसान है, इनकार भी कर सकते हैं। और कई दफ़ा ह्यूमिलिएशन इतनी होती है कि जिससे मांगते हैं वो जलील ही कर देता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद बता रहे हैं कि जब भी मुश्किल में आओ मेरे पास आ जाओ, क्योंकि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान और ज़मीनों का एक एक चीज़ का मालिक तो वही है ना, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आ सकती है। अगर पूरी कायनात जब से दुनिया बनी है और जब आखिर टाइम आएगा, हर एक की ज़रूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी करते हैं, हर एक की मांगने वाले की दुआ सुनते हैं और उसको वो अता कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़जाने में से उतना भी कम नहीं होगा कि जितना पूरे समंदर में आप सुई डाल के निकालेंगे ना, तो उसकी बिल्कुल उसके वो कहते हैं ना, उसके बिगनिंग में जो पानी लगा हुआ है ना, उतना भी अल्लाह के ख़जाने से कमी नहीं होती। तो पूरे यकीन के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगनी है कि या पाक परवरदिगार मुझे अपनी हिफाजत में ले ले।
अब रब का लफ्ज़ जो है ना, ये अरब जो थे वो इससे फ़ैमिलियर थे, क्योंकि वो कहते थे रब्बुल बैत, जैसे घर का जो बड़ा होता था ना, जिसका घर होता था कि फ़लाँ घर के मालिक के लिए। अच्छा, गुलाम जो थे वो अपने आका को, जैसे वो मौला का लफ्ज़ भी बोला करते थे। इसी तरह से इलाह का लफ्ज़ जो आएगा अभी इंशाअल्लाह आता है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, और मालिक का लफ्ज़ भी ना अरब जो लोग थे वो उससे वाकिफ़ थे। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे इसलिए ये अपनी सिफ़ात लेके आए कि रब होना, मालिक होना और इलाह, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला, कुल्ली तौर पर अल्लाह सुब्हाना ताला के इख्तियार में है। कोई इंसान मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ का मालिक नहीं हो सकता। अब रब का जो आता है कि नंबर 1 अगर हम देखते हैं कि रब कौन है, मेरा मालिक है वो। अच्छा, नंबर 2, रब के अंदर जो इसके डिफरेंट शेड्स मैं आपको अभी बता रही हूँ। नंबर 1 ये कि सैयद कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरा सरदार है। मुकम्मल अथॉरिटी अल्लाह सुब्हाना ताला को है। अल्लाह सुब्हाना ताला मुरब्बी हैं, तरबियत दर्जा बदर्जा कमाल तक पहुंचाने वाला मेरा रब है। अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे मुर्शिद है, मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला क़य्यम है। आयतुल कुर्सी याद कर लीजिए कि अल्लाह ने मुझे और पूरी कायनात को कायम रखा हुआ है। एक चीज़ इधर से उधर हो जाए, पूरी कायनात तबाह हो जाएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला मुनइम है कि नेमतें देने वाले हैं। नेमतें, हमारी पूरी ज़िंदगी नेमतों से भरी हुई है। हम ही हैं जो अपनी नेमतों को पहचानते नहीं और उनको अल्लाह की नाफरमानी में लगा देते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान का सबसे पहला तारुफ जो है वो रब से ही कराया है, क्योंकि रब में बहुत मोहब्बत होती है। पालने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला, वही मेरा रब है जो मुझे जैसे माँ का एक फीलिंग आती है ना कि छोटा बच्चा जैसे अपने आप को महफूज समझता है। इसी तरह से जब हम सबसे पहले अल्लाह ने अपना तारुफ कराया था अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो हम इस नाम से वाकिफ हैं। इसके बाद आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही भी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहली जो वही थी उसमें भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपना तारुफ रब से करवाया था। कुरान पाक में जब हम खोलते हैं तो सबसे पहले सूरह फातिहा में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहां पे भी रब आलमीन, तमाम जहानों का रब। तो हमें सबसे पहले जब हम एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि मेरा रब है, कोई हो ना हो, कोई मुझे पहचानता है नहीं पहचानता, कोई मेरा दुख सुन सकता है कि नहीं, कोई भी अगर मेरे साथ नहीं है ना, तो मेरा रब मेरे साथ है, क्योंकि वो मेरा अल्लाह जो है वो मुझे हर मुसीबत, हर तकलीफ से निकाल देगा। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने ही बताया कि ये वर्ड्स अदा करो, ये सूरत पढ़ो, ये कलमात अदा करोगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें बचा लेगा। अब दूसरी बात, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे जो नास कहा है ना, देखें यहाँ पे ये नहीं कहा कि मोमिन का लफ्ज़ नहीं आया, मुस्लिम का नहीं आया, मुत्तकी का नहीं आया, तमाम इंसानों का। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, अल्लाह तमाम इंसानों का रब है ना। तो इंसान जो है ना, हम इंसान इनको निसियान से हैं, हम भूलते हैं, बार बार भूलते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार याद कराते हैं कि इंसान तू फिर भूल जाता है, इसीलिए बार बार हमें बताए, क्योंकि शैतान बार बार हमला करता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी बार बार याद करवाते हैं कि इंसान तू अपने आप को बचा ले, क्योंकि दुनिया में तू आया है तो किस लिए, अपना मकसद हयात। देखिए, एक अगर हम अपने अल्लाह को पहचान जाएंगे, हम ये सारी चीज़ों को पहचान जाएंगे, हम अपना मकसद हयात पहचान जाएंगे कि अल्लाह ने हमें क्यों भेजा, क्योंकि हम बंदे कहाँ के हैं, हम जन्नत के लोग हैं, हमने जन्नत में वापस जाना है ना। तो फिर हमें ये चीज़ों का पता होगा तो हम वैसे करेंगे ना। अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया में हमें सिर्फ एक टेस्ट के लिए भेजा है, और टेस्ट जो है वो, उसमें आपने कभी देखा, हमारे ज़माने में कर्शी पेपर होते थे, इम्तिहान से पहले आ जाते थे और हम वहाँ से याद देख लेते थे, अच्छा ये सवाल आ सकते हैं, तो हमारी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाती थी।
अल्लाह सुब्हान ताला ने तो उससे भी आसान कर दिया। हम कहते हैं ना हमें क्या पता गायब में क्या है, पता है गायब में क्या है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने सब कुछ बता दिया है कि देखो वहां पे जाओगे तो ये चीजें होंगी, देखो अगर गलत करोगे तो ये सजा मिलेगी, अच्छे काम करोगे तो ये जन्नत मिलेगी। देखो दुनिया में तुम जब इम्तिहान, मैं तुम्हारा, अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं ना, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं, तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि इन चीजों से बच जाना। अच्छा ये कलमात पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा तुमको, और क्या चाहिए। इतनी आसान। एक तरफ तो हम कहते हैं ना इतनी मुश्किल दुनिया, इतना फितना, इतना फसाद, दूसरी तरफ देखिए कितनी आसानी है। अल्लाह सुब्हान ताला ने क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट हमें बता दिया कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अच्छा अब सेकंड में आप देखिए आया नंबर 2, मालिकिन नास, कि मालिक है। मालिक किसको कहते हैं? बादशाह को कहते हैं। इंसान पर कामिल इक़्तिदार अल्लाह सुब्हाना ताला का है। ज़ाहिरी असबाब पर तो वो पूरा कंट्रोल रखता है, और बातिनी असबाब भी मुकम्मल तौर पे अल्लाह सुब्हाना ताला के इख्तियार में है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह सुब्हाना ताला कोई बीमारी, कोई शर, कोई तकलीफ, कुछ भी अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता, कुछ भी। हमने पढ़ा ना कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि मुझे क्या मुसीबत पड़ी मैं तुम्हें मुसीबतों में डालूं, मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें मुसीबतों में डालूं, तुम्हारे अपने अमाल ही काफी हैं जो तुम्हें मुश्किलों में डाल देते हैं। बिल्कुल वही बात है, हमारे अमाल की वजह से हम मुश्किल में आ जाते हैं, लेकिन हमने बचना कैसे है? अल्लाह ने बता दिया कि कैसे है। अल्लाह का जिक्र, सारा वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह सुब्हान तआला बचा लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब सेकेंड इलाहिन्नास। अच्छा जी, अब थर्ड आया में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं इलाहिन्नास, कि अल्लाह ऐसा इलाह है जिसकी इबादत की जाए, जिसके आगे झुका जाए, जिससे कोई सवाल बंदा नहीं कर सकता, वो जिससे वालहाना मोहब्बत की जाए, वालहाना मोहब्बत की जाए। आपको याद है ना वो हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान, अपने माल, अपने माँ बाप, अपनी औलाद सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करो। तो वो हस्ती जिसे वालहाना मोहब्बत की जाए। रब और मालिक इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी आज तक इलाह का लफ्ज़ जो है वो इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा जी, इंसान दुनिया में दूसरों से मदद ले सकता है, लेकिन तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर, कि अल्लाह चाहेगा तो ये होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम मदद लेते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, अब वही डॉक्टर है जो ऑपरेशन कर रहा होता है, तो उसी के हाथ में अगर उसी ने सारा कुछ करना होता तो फिर कोई मरीज ना मरता, फिर उसी के इलाज से कुछ शफा याब हो जाते, कुछ नहीं होते। लेकिन मदद हमने, अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसानों को इंसानों के लिए बनाया है, ऐसे हम दुनिया में मदद लेते हैं, लेकिन मदद सिर्फ वही है जो इंसान ह्यूमनली पॉसिबल है। हम एक होता है ना कि हम कहते हैं कि ठीक है इंसानों से मदद ले सकते हैं, तो मेरे जो पीर साहब हैं वो आ जाते हैं, फ्लाई करते हैं, जो भी आ जाते हैं और आके वो मुझ पे यहाँ पे दम कर देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी। उनको पता लग जाता है कि मेरे हाल क्या है, तो वो मुझे वहां से ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी की सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह जब आप सूरत फलक आपने पढ़ ली है, सूरत नास को समझेंगे तो आपको इस बात की अच्छे से समझ आ जाएगी। इंसान का इख्तियार इतना है ही नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है वो भी क्लियर हमें पता चल गया है ना। तो यहाँ पे हम इसलिए नहीं आए कि हम उड़ते फिर इधर उधर जाए, वो जिन्नात है उड़ने फिरने के लिए। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे हम इसमें पढ़े कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, तो बी जो होता है ना, आउज़ु के बाद बा हरफे जारा जो है, ये हमेशा उसके लिए आता है कुल आउज़ु बी रब्बिन, जिसकी पनाह में जाना होता है।
जिससे हम मांग रहे होते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे अपनी पनाह में ले ले, तो बा हरफ़े जार आता है। जिससे पनाह मांगते हैं ना उसके लिए मिन का लफ्ज़ आता है। तो कुरान पाक में आप जहाँ भी पढ़ेंगे तो अब आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिल्लाहि अल्लाह से, मिनश शैतानिर रजीम तो शैतान से हम पनाह मांगते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं आया नंबर 4 पे। अब ये 3 आया में हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान की कि अल्लाह कौन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या इख्तियार है। कोई इंसान, कोई जिन, कोई मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार से बाहर नहीं है। अल्लाह ने देना है, जो कुछ देना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना है जो कुछ मांगना है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो लोगों को आदत होती है ना मांगने की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे नापसंद वो लोग होते हैं जो हर एक के आगे हाथ फैलाते हैं, क्योंकि बाज लोगों को आदत पड़ जाती है ना। तो मांगना है तो अल्लाह से मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऑनेस्टली पता भी नहीं होता कोई बंदा कहाँ पे बैठा होता है, उसके दिल में ये ख्याल डाल देते हैं कि किसकी क्या ज़रूरत है, और वो बंदा उसको खुद ही से ही कॉल करके वो चीज़ कर देता है। तवक्कल तो करें अल्लाह पे, तवक्कल तो करें अल्लाह पे। देखें तो सही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे आपके दुख, आपके गम, आपकी परेशानियां कैसे दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हम जब बेसिक लाइन समझ आते हैं ना, तो हम जैसे ही सीधी चलना शुरू कर देते, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मांगते हैं अल्लाह से ना, तो द मोमेंट हम उस रास्ते पे चलना शुरू होते हैं, हम खुद से देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से हमारे रास्ते आसान कर देते हैं। अब आया नंबर 4 में अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे जिससे हम पनाह मांग रहे हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अच्छा, मिन का मैंने आपको बता दिया कि हरफ़े जारा उसके साथ जिससे हम पनाह मांग रहे हैं। अच्छा, शर जो है ना, अब देखिए शर उसके लिए आता है जैसे आप देखिए एक बिग फ्लेम जो होता है ना, उसमें स्पार्क जो होता है उसको शर कहते हैं। और ये जो स्पार्क होता है ना, ये इतना बड़ा कर दे, मतलब स्पार्क आते हैं और वो पूरी चीज को आग लगा दे। बड़ा मतलब बिग तरह से अगर इसको देखेंगे ना, कि ये शर जो होता है ना, ये बुरे ख्यालात जब शैतान डालता है पूरी नेकियां खा जाता है। ये इतना बुरा शर होता है। वसवास कहते हैं, इसी तरह वसवास के बुराई से वसवास जो वसवसा डालना, वसवसा कौन सा होता है? बुरे ख्यालात डालना। अब शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि ये कौन है जो ख्यालात बुरे डालता है। तो जब भी हमारे दिल में कोई बुरा ख्याल आएगा तो क्या पहचानना मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। अल्लाह ने बता दिया कि वो खन्नास है। खन्नास को कहते हैं ऐसा, ये शैतान की सिफत है। जैसे हम देखते थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफत रब है, इलाह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कुल औज़ु बिरब्बिना मालिक है। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो हम 99 नेम भी पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खन्नास जो है ना, वो शैतान की सिफत बयान की है कि वो खन्नास कहते हैं कि वसवसा डाला और पीछे हट गया, वसवसा डाला और पीछे हट गया। पीछे क्यों हटता है? क्योंकि द मोमेंट बंदा वसवसा आता है ना, जो पहचान जाते हैं, जैसे अब इंशाल्लाह हम भी पहचान जाएंगे ना, कोई बुरा ख्याल आए फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र शुरू कर दो, खन्नास पीछे हो जाता है। वो जिस दिल में अल्लाह का जिक्र हो, जिस जुबान से अल्लाह का जिक्र जारी होता है ना, वहाँ पे खन्नास आके वसवसा नहीं डाल देता। वसवसा जो होता है ना, इसको वाओ सीन और वाओ सीन, इसके रूट वर्ड जो है ना, ये कहते थे, ये अरब जो थे ये पहले यूज करते थे इस वर्ड को। वस इसको कहते थे। जैसे गोल्ड की चूड़ियां पहनी हो ना, तो समटाइम छनकती हैं, जैसे आवाज आती है, और वो आवाज बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि एकदम से अटेंशन ग्रैब कर लेती है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो छन छन की आवाज आ जाए। गोल्ड की चूड़ियों की बात कर रही हूँ। जैसे अब तो मेरे ख्याल दूसरी भी अगर चूड़ियां पहनी होंगी आएगी। खैर एनीवे, जो अरब थे ना,
اس کی آواز کو وسوس کہتے تھے، کیونکہ وہ فوراً اٹینشن گریب کر لیتی تھی. تو اس چیز کو وسوسہ شیطان کا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی انسان کی اٹینشن گریب کر لیتا ہے. اتنا ظالم ہے یہ کہ کس طرح سے یہ کرتا ہے. اچھا، اب ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارا اب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا نا کہ کرین کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو کہا کہ اس کے ہر انسان کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 کرین ہوتے ہیں. تو ایک فرشتہ کرین ہوتا ہے، ایک جن کرین ہوتا ہے. کرین کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کلوز ہوتا ہے، بالکل ساتھ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنے والے کو کرین کہتے ہیں. اچھا، اب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 2 کرین آتے ہیں. ایک جنوں میں سے ہوتا ہے اور ایک ملائکہ میں سے ہوتا ہے. اور جو برے خیالات ہمارے آتے ہیں نا، وہ اس کرین کی طرف سے آتے ہیں، اور جو اچھے خیالات ہوتے ہیں وہ ملائکہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا، الہام ہو جاتا ہے، اچھے خیالات آتے ہیں ایک دم سے، کوئی ایسی چیز دل میں آتی ہے کہ ایک سکون کی فیلنگ ہوتی ہے. Now you will understand also، کیونکہ سارا دن میں یہ خیالات آتے جاتے رہیں گے. یو ول فائنڈ آؤٹ، اوکے ناؤ دس از شیطان کا حملہ، ناؤ دس از فرشتے کا الہام. اب مجھے ان سے کیسے بچنا ہے؟ کیونکہ خیالات انسان کی زندگی کو پورا بدل دیتے ہیں. اب دیکھیے، خیالات اگر اچھے ہوتے ہیں نا تو انسان کی زندگی اس کے مطابق اچھی ہو جاتی ہے. آپ کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے جو خیالات آتے ہیں نا، سیڈنس، کیونکہ جو کرین ہوتا ہے نا وہ. اچھا، پہلے میں رسول اللہ کا بتا دوں کہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سے کہ کیا آپ کا بھی شیطان کرین ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کی مدد سے وہ مسلمان ہو گیا، اور اب وہ مجھے خیر کی بات بتاتا ہے. تو ہمارے پاس اب کیا ہے کہ کیونکہ کرین سارا وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری ساری، اس کو پتہ ہوتا ہے، ہماری ویکنیسز کو جانتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کسی کو عادت، کسی کو اس کا ویکنس کیا پیسہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو وہاں سے اس کے خیالات ایسے ڈالے گا کہ وہ غلط کام کر لے. کسی طرح سے شیطان کا کام کیا کہ کسی طرح سے انسان کو اتنا ذلیل کر دے، اتنا خراب کر دے کہ وہ دین سے پھر جائے. کسی طرح سے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر دے، کسی طرح سے وہ جنت میں نہ جا سکے. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور ان کو آپ نے وسوسہ خیال ہی ہے نا جو بار بار آتا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے ٹو مچ وسوسہ ڈالنا، ٹو مچ خیالات ڈالنا. اور خناس بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑتا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود بتا دیا کہ یہ خناس ہے، یہ وسوسہ ڈالے گا. تم نے کیسے بچنا ہے؟ بس سورت پڑھو، اللہ پہ یقین کرو. یہ دونوں صورتیں نازل کر دی ہیں، تمہیں کچھ نہیں کر سکے گا. اچھا، اب یہاں پہ خناس کا کیا ہم نے دیکھا کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے. پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. اور کرین کے بارے میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہر انسان کے ساتھ 2 کرین ہیں. جو لوگ طہارت کرتے ہیں، طہارت میں رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، ان کا کرین کمزور ہو جاتا ہے، وہ ان پہ حملہ نہیں کر پاتا. لیکن جو یہ سارا کچھ نہیں کرتے، میں آنیسٹلی جب یہ پڑھ رہی تھی، میں نوٹس لکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ اکبر، ہمیں ابھی پتہ چلتا ہے. جیسے جب میں نے پہلی دفعہ جب یہ سورہ کی تفسیر پڑھی تھی تو میں سوچتی تھی اللہ اکبر، مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے. تو بچے، اور رسول اللہ کی وہ حدیث یاد ہے نا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ مغرب کے ٹائم میں شیطان پھیل جاتے ہیں، تو ان کو اپنے قریب کر لو. ان کو اپنے قریب کیوں کر لو؟ کیونکہ بچے خود سے یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ رقیہ نہیں کر سکتے، دم نہیں کر سکتے اپنے اوپر. تو تم ان کے اوپر پڑھ کے دم کر دو، تاکہ جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے، شیطان اس کو اچک لیتا ہے. تو ہم بھول گئے سارا کچھ.
ہم بھول گئے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہماری شادیاں بھی پہلے تو آف کورس کرنا چاہیے، شادیوں میں سب سے پہلے بتانا چاہیے کہ اب آپ لوگ کہاں جا رہے ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شادی کا مقصد کیا رکھا ہے، جب اولاد کو کیسے شروع سے محفوظ رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی حفاظت میں دے دو، شیطان سے محفوظ رکھو، کیونکہ یہ چیزیں ہونی ہیں دنیا میں. یہ چیزیں ہیں جب وہ کسی غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں بہت دیر ہو جاتی ہے. اگر یہ شروع سے پتا ہو تو ہم اپنے بچوں کو بھی بچا لیں گے، ہم اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے. ہمیں تو اپنے لیے نہیں پتا تو ہم ان کو کیسے بچائیں گے نا. لیکن انشاءاللہ آئی ہوپ اس کے بعد آپ لوگوں کو سورۃ ناس و فلق سے محبت ہو جائے گی، ایسے کہ آپ کہو گی کہ اچھا مجھے وقت ملا میں جلدی سے پڑھ کے 3 دفعہ اپنے اوپر دم کر دوں. اچھا بچے کا گھر پہ نہیں ہے نا، جس امیجن آنکھ سے امیجن کرو اور 3 دفعہ پڑھو اور ان کے اوپر دم کر دو کہ یا اللہ ان کو میری اپنی حفاظت میں رکھنا. بچے گھر سے نکلتے ہیں، ان کو کہو، ان کو بار بار یہ بات کہو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلو گھر سے، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. ساری چیزیں رسول اللہ نے بتائی ہیں، سب کچھ بتایا ہے، ہم ہی نہیں سنتے ہیں نا. پھر تو آگے دیکھیے کہ ہم نے 52 ابھی تھوڑا سا ہے ٹائم. اچھا جی، ہم نے قرین کا بھی دیکھ لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے خون کی طرح اندر گردش کرتا ہے، فلو کرتا ہے. کیسے؟ انسان کے اندر غصہ، ان کے نفرت دلانا، شک دلانا، بدگمانی، برے خیالات، فحاشی، سب کچھ اس کا کام ہے. دا مومنٹ آپ کو ایسے کوئی بھی چلے، آپ اگر آپ کو لگتا ہے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہم نے کسی اور کو جج نہیں کرنا. ہمیں تو آنیسٹلی اپنے آپ کو جانے تو پورا دن پوری رات ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. ہم یہ دیکھنا شروع کریں کہ میرے بچے اس سچویشن میں کب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہیں. ان کو بتانے کا اب ٹائم نہیں، وہ سنتے بھی نہیں ہیں، وہ کرتے بھی نہیں ہیں. آپ کرنا شروع کر دیں آنیسٹلی، کیونکہ ہم جب بڑے ہوتے ہیں نا ہماری ذمہ داریاں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے. ہم تمام جو نانیاں دادیاں اسپیشلی ایک ایک بچے کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کے ان کے اوپر ضرور دم کیا کرے، رقیہ شریعہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو کر لیں. اب پاکستان انڈیا میں تو ہر جو اسلامک بک سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ سارا کچھ مل جاتا ہے، آرام سے مل جاتا ہے. آپ لوگ اب تو گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا، یہ پوری ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. اچھا جی، اب آگے تھا ہم نے کہاں تک کیا تھا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. ہاں جی، اب آیا نمبر 5 میں الذی، وہ جو یوسوسو. اب یوسوسو فعل مضارع ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ڈال رہا ہے اور وہ ڈالتا بھی رہے گا. ٹھیک ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے ہوتے ہیں. یوسوسو فی صدور الناس. اب صدور کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیے اتنی خوبصورتی سے پلیسمنٹ ہوتی ہے نا جب ہم کیونکہ ہم تو یوزلی دل ہی پڑھتے ہیں، قلب کو بھی دل کہہ دیتے ہیں، صدور کو بھی دل کہہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ قرآن میں جب فؤاد کا لفظ آتا ہے وہاں پہ بھی ہم نے دل ہی لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدور کا کہا ہے. صدور اور قلب میں کیا فرق ہے؟ صدور جیسے آپ فار ایگزامپل ایک ہمارا گھر ہے، فرنٹ یارڈ ہے، بیک یارڈ ہے، پھر اس کے بعد ہمارا ایک لانچ آتا ہے، پھر ہمارا مین گیٹ وہاں پہ دروازہ ہوتا ہے، وہ کھولتے ہیں تو پھر ہم اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پورا گھر تھا نا، فرنٹ یارڈ، بیک یارڈ، وہ سارا یہ ہے صدور. لیکن جب ہم وہ مین ٹی وی لانچ والا جو پہلا والا ہوتا ہے نا دروازہ، اس کو کھول کے جب ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں نا، دیٹ از اے قلب. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی پیاری بات بتا دی کہ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا. یہ سارے اختیار اس کے پاس تھے نا، وہ آتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں حفاظت کر لوں گا، یہ کر لو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قلب میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے، وہ نہیں جا سکتا، وہ صدور تک رہتا ہے.
वहां पे वो वसवसे डालता रहेगा। जब वसवसा आपके कल्ब के अंदर आ जाए तो आप ये सोच लीजिए कि वहां पे वो खुद नहीं आ सकता, उसको आपने खुद इजाजत दी है, आप खुद उसको वहां पे लेके आए हैं, इस वजह से उसने वहां पे भी आके हमला कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कल्ब का कहा था ना कि जब हम बुराई करते हैं, एक बुराई करते हैं तो एक नुक्ता डॉट लगता है, दो करते हैं दो डॉट लगते हैं, फिर हम माफी मांग लेते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, और जो माफी नहीं मांगती इसी तरह से पूरा कल्ब उनका जो है स्याह हो जाता है। और कल्ब एंड सदूर में दैट इज द डिफरेंस। और इतनी तसल्ली होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कल्ब अल्लाह की याद में रहता है ना, शैतान कुछ नहीं कर सकता। सिवाय आज से पहले हम लोग बड़े शौक से कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह की दुआएं भी कर लेती हूँ, मैं रात की भी करती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, लेकिन जब सारा दिन हम तस्बीहात नहीं करते तो हमें कभी ये नहीं लगता था कि नहीं ये कितनी ज़रूरी है। आज के बाद ऑनेस्टली आपकी ज़ुबान चुप होगी ना अगर, तो एकदम से आप अलार्म हो जाएगा, नहीं 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 मुझे चुप नहीं होना, सुभान अल्लाह पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, अल्लाह अकबर पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो कुछ भी आपको याद आएगा आप फौरन पढ़ना शुरू कर देंगे कि अल्लाह सुभान, अस्तगफार बहुत पढ़ना, तो आपका पूरा वक्त अल्लाह की याद में चला जाएगा। देखिए इतनी प्यारी बात लगती है कि जब हम तफसीर पढ़ते हैं ना, तफसीर ऑलरेडी डन है। तफसीर ऐसा नहीं है कि मैं तफसीर करा रही हूँ तो मैं अपने पास से चीज़ें बता रही हूँ आपको, तफसीर ऑलरेडी डन है, हम वहाँ से नोट्स लेते हैं। और जो भी हमें लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 डिफरेंट तफसीर से लेके वो नोट्स बना के आप तक लेके आने होते हैं कि मैं अपने बता सकूँ अपने तमाम स्टूडेंट को, एंड देन आप लोग अपनी रिसर्च इंशाल्लाह फिर करते हैं और आप लोगों को और मज़ा आता है, क्योंकि ये तो इल्म ही ऐसा है ना। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान और जिन्नात में यही फ़र्क रखा था कि इंसान को इल्म पे फजीलत दी थी और उसको उसकी ताकत में फजीलत दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे था आया नंबर 5 में अलज़ी युवस्विसु फी सुदूर नास, तो हमने सुदूर को देखा ना कि कहाँ पे जाता है, फी सुदूर नास मिनल जिन्नति वन नास, अल्लाह अकबर, के जिन्नों में से और इंसानों में से। अब देखिए जिन्नात का तो हमें पता चल गया कि वो वसवसा कैसे डालता है, हमने करीन को भी देख लिया कि करीन कौन है, कि जो हमारे पास रहता है, वो कभी नहीं हमें छोड़ता, ठीक है, और हमें कब वो नहीं तकलीफ दे सकता, वो कैसे वीक हो जाता है हमें तकलीफ नहीं देता, जब हम अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। नमाज अपनी जगह है, तहज्जुद अपनी जगह है, कुरान अपनी जगह है, हमने अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना। हमारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहेगी, हमारा कल्ब जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र से तर रहेगा। जब वो जारी हो जाता है ना कल्ब पे, कि आपकी जुबान चुप है लेकिन आपका दिल वो जिक्र करना शुरू हो जाता है, इतनी आदत पड़ जाती है तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। फिर आप हर चीज देखिए, शैतान जो है ना वो एक, जैसे कहते हैं ना, वायरस की तरह हमारे अंदर चला जाता है। उसका, शैतान का टारगेट पता है क्या है? शैतान का टारगेट हमारा कल्ब है, क्योंकि उसको पता है कल्ब क्या होता है, जिसमें खून पंप होता है ना और वो पूरे जिस्म में फ्लो करता है, तो उसका टारगेट हमारा कल्ब है। वो सुदूर से हमारे कल्ब में आना चाहता है ताकि वो उसके पूरे जिस्म में जाए और वो उसको नाफरमान अल्लाह सुब्हानहू तआला का बना दे। हमने उसको इस पॉइंट पे रोकना है कि वो हमारे सुदूर से हमारे कल्ब तक ना जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी बात मुफस्सिरीन ने जो जब वो पढ़ते हैं तो और भी मज़ा आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि किस किस तरह से हम शैतान से बच सकते हैं। और इंसान, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन्नात का बता दिया और फिर कहा कि इंसानों में भी जिन वो शर वाले लोग होते हैं, हाँ होते हैं ना, आपको पता है। देखिए एग्जाम्पल एक छोटी सी इससे मैं आपको समझाती हूँ कि एक सबसे पहले शैतान का काम भी क्या है कि जो मियाँ बीवी है ना, सबसे उसका फेवरेट काम ये होता है कि उनके अंदर लड़ाई करवा दो, उनमें किसी तरह से दूरी करवा दो। अब आप खुशी से रह रहे हैं अपने घर में, बड़े मज़े से रहते हैं, आपकी एक दोस्त आती है आपके घर में आके चाय वाय पी रही है, उतनी देर में आपके हस्बैंड आ जाते हैं घर में, आके वो लेटने के लिए चले जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, जॉब से आए हैं।
आपकी दोस्त आपके घर रहने आई हुई है, कहीं दूसरी कंट्री से आई है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो देखती है फिर दूसरे दिन फिर यही होता है और वो ऐसे ही बस आप कह देती है तुम्हारे हस्बैंड घर आते हैं तो आते ही वो लेट जाते हैं, तो उसने कहा हाँ वो थके हुए आते हैं, फिर मैं चाय जब बनाती हूँ तो देन हम दोनों मिलके चाय पी लेते हैं। तो उसने कहा हाय मेरे हस्बैंड तो जब आते हैं उनको तो पता होता है कि मैं सारा दिन अकेली रही हूँ घर पे हूँ, और वो आते ही सबसे पहले वो मेरे साथ टाइम गुज़ारते हैं, वो तो हम लोग तो ऐसे नहीं करते, ये तुम्हारे हस्बैंड सो जाते हैं बस आते ही। इतनी सी बात, वो चिंगारी जो होती है ना, वो फ्लेम बड़े वाले में से एक छोटा-सा वो डाल देना वाली बात है। अच्छा, जिसको कहा, वो खुद तो चली गई अपने घर वापस। अब वो हस्बैंड घर आए, तो उसने देखा कि वो आके सो गए हैं, हमेशा से ऐसे करते थे। तो जाके गुस्से से, आप तो रोज़ आते हैं तो आके सो ही जाते हैं, बस आप मैं तो सारा दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी। फिर दूसरे दिन फिर वो देखती है, फिर वो जाती है, फिर उसको गुस्सा आता है। आपका तो काम ही है, आते हैं, आप सो जाते हैं, आपने तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाई हुई अपनी। तो एक बात कैसे पूरा घर तबाह कर दे। ये मैंने ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दी है, आपके पास हजारों एग्जाम्पल होंगे जब आप सोचना शुरू करेंगे कि इंसान कैसे आग लगा देते हैं। इसलिए किसी की टोह में मत लगो, अल्लाह तुम्हें घर में रुसवा कर देगा। आज की हदीस में हमने पढ़ा था ना, यही बात होती है कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। कितनी दफ़ा देखिए, आपने पढ़ा सूरत नास और फलक में क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईवल आई से लेते थे। आज आप ईवल आई का बच्चों को बताओ, वो कहेंगे लो माम हम ऐसे ही, अब यू आर ओल्ड थिंकिंग आप लोगों की है। फलां देखिए मेरी दोस्त है, वो भी ऐसे कहती है, उसकी अम्मी जो है वो भी आपकी तरह हिजाब लेती है, अच्छे भले मुसलमान है, लेकिन उनके बच्चे देखें मीडिया पे क्या क्या नहीं कह रहे होते। कभी वो कपड़े पहनते डिजाइनर के, ये मैंने ये पहना, ये मैंने ये पहना, बाल मैंने वहां से बनाए, ये मैंने मेकअप यहाँ से किया। आप ही की तरह के लोग हैं, कुछ उनको तो नजर नहीं लगती है, आप हमें बच्चे लेके आ जाती हैं, भाई माओ के साथ आ जाती है। देखिए अल्लाह अकबर, कैसे कैसे शैतान के वार आप समझने शुरू होंगे ना। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक जिन्होंने अभी नहीं सुनी वो भी सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमारी नस्लों की नस्लें बर्बाद हो रही हैं। कहा था उसने, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहा था मैं तेरी जो इंसान है ना, इनकी आदम की नस्लों तक को तबाह कर दूंगा। याद रखिए, उसने जन्नत में फल खिला के क्या किया था, कपड़े उतरवाए थे। आज की बच्चियों को आप देख लें, और आप देख लें आज फहाशी कहाँ चली गई है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में हराम कहा है ना, अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु। हम अपने नफ्स को अपना इलाह बना देते हैं। हमने जो काम है, अब वो रसूल अल्लाह ने कहा था ना कि आखिरी वक्त आएगा जब हम हराम का लेबल चेंज करके उसको हलाल कर देंगे। आज आप देख लीजिए, हर चीज में कोई ना कोई इधर से उधर करके कोई ना कोई चीज ऐसी निकाल देंगे कि नहीं नहीं है, इसकी तो इजाजत है। क्या मतलब है, अब ये इतना भी ना करें वाली बात है। बस इतनी बात है कि आप लोगों ने शैतान को पहचानना है, उसके वार को पहचानना है, उसके वसवसे को पहचानना है, और अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत को पहचानना है, और ये जानने कि मेरा रब जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा थोड़ी देर की ज़िंदगी है, ये दुनिया में आजमाइश है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने पेपर ओपन कर दिया है, मुझे बता दिया है कि तुमने क्या क्या करना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हारे गम परेशानियां सब कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। पूरे यकीन, पूरे एतमाद, पूरे तवक्कल के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हों। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ लिया था सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई, इधर उधर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं बस कि बस हमने ऐसे कर लिया। अल्लाह अकबर, ठीक है, तो हमने ऐसे कर लिया तो बस ठीक है हम पूरे हो गए, ऐसा नहीं है। जिसके आगे हाजिर होना है ना,
पूरे यकीन के साथ, आप किसी के साथ आप देखें किसी के आगे हाजिर होंगे, किसी से आपकी कोई चाहत है, कोई चीज़ आपने लेनी है किसी से, तो आप ऐसे तो नहीं, आप बहुत बड़ी आपकी ज़रूरत है फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसे जाके मांगेंगे। कैसे आप मांगते हैं? आप बस वो चीज़ अपने सामने रखिएगा कि हम जब किसी के, अल्लाह ना करे को, आप देखिए जब किसी का के घर में खाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, और वो किसी को अपनी ही जानने वाले, अपनी किसी को भी फॉर एग्जांपल बहन है या किसी को जाके जब वो रिक्वेस्ट करती हैं, तो वो कैसे रिक्वेस्ट होती है? ऐसा होता है कि अच्छा बस दे दो, जो देना है तो दे दो, बस ठीक है, बस मैंने कहा था आज हमारे घर ऐसे है तो ऐसे, ऐसे तो नहीं कहते ना। पूरे जवारे के साथ, पूरे अपने लिम्स के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होना है, पूरे कल्ब की हजूरी के साथ हाजिर होना है, कोशिश करनी है। देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि बस आज आपने सुन लिया तो बस इस तरह से होगा, आप नमाज में भी खड़ी होंगी, अपने आप को बार बार उधर लेके आएंगी। मैं जिस बादशाह के सामने हाजिर हूँ, मैं जिस इलाह के सामने हाजिर हूँ, मैं जिस रब के सामने हाजिर हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बात अपनी अपनी सामने रख रही हूँ कि या पाक परवरदिगार, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, ये मेरी मुश्किल आ गई है, ये मेरी फॉर एग्जांपल सेहत ख़राब है, रिस्क में तंगी है, औलाद से प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड से प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ अल्लाह के सामने हाजिर उस तरह से रखें। जब नमाज की हालत में होंगे, अपने आप को पूरी हजूरी के साथ, अपने पूरे हाथ पाँव हर चीज़ के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से हमारी दुआएं कबूल करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत जनाब, अब आज हमारा 30th पारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा एहसान है। अब इंशाल्लाह हम वापस अपने 15 पारे से आगाज़ करेंगे और सूरह कहफ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो वहाँ से हमने 14 पारे कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं आई एम सो हैप्पी, दैट वाज माय ड्रीम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे मौका दें और मैं 30th पारा कंप्लीट करा सकूं। आप में से जिसने कोई भी सूरा रह गई है ना अभी, वापस ज़रूर जाइए, क्योंकि प्लेलिस्ट में पूरी सूरतें अभी तक उसी तरह से। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि छोटी सूरा है तो मैं इसको जल्दी से करा दूं और फिर मैं साथ दूसरी मिला दूं, लेकिन ऑनेस्टली कोई छोटी सी छोटी सूरा भी ऐसी नहीं थी कि जिसको मैं कह सकती कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगी तो मैं दूसरी मिला दूं। और हर दफ़ा मुझे ये लगता था कि मैं उसका हक अदा नहीं कर सकी। हर दफ़ा मुझे ये लगता था कि मैंने तो अभी ये भी नहीं कहा, मैंने तो ये भी नहीं बताया, ये भी मैंने नोट्स में लिखा था, ये भी मैंने बताना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे और आप लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे कि आप खुद अपनी रिसर्च करें। एक से एक तफसीर आप लोगों को मिलेगी, जो आप लोगों को एक से एक मुफस्सिरीन में से ऐसे मिलेंगे कि जिनको आप ऐसा नहीं कि एक जगह पे आप बैठे हुए हो, आप डिफरेंट स्कॉलर्स को सुनते हैं, आपका विजन बढ़ता है, आपकी आपकी आई ओपनिंग नहीं जैसे होती है, आपका अमल करना आसान हो जाता है। बस ये मेरा इतना सा काम होता है कि मैं कोशिश करूं कि जो हम पढ़ रहे हैं ना हमारे अमल में आ जाए। आज की सूरह में जैसे हम अपने दुश्मन को पहचान जाएं, इस दुनिया के दुश्मन और हम ऐसे दुश्मन जो सीन और अनसीन दुश्मन को पहचान जाएं, ताकि हम उससे अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफाजत में आ जाए। और जब हम अपने दुश्मन से हिफाजत में आएंगे तो दुनिया हमारे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि यही दुश्मन हमें बीमारी से भी बचाए। मतलब हम बीमार होते हैं तो इसी वजह से होते हैं। आज आपने देख लिया ना, रुकिया शरिया के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, दुआओं के बारे में भी बता दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं उनके बारे में भी बता दिया। थोड़ा उस तरह से सोच रहे होते हैं ना कि हाय नहीं कोई अजर ज़ाया नहीं जाए। बेशक तसल्ली होती है कि वो ठीक ही बात कह रहे होंगे, लेकिन फिर भी 2 दिन के रोज़े रख लीजिएगा। हमारा तो एक ही बनेगा, क्योंकि हम तो इधर हैं, लेकिन जिन्होंने 9 पूरे रख रहे हैं, यादें रख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला सबके कबूल और मंजूर करे, आमीन। तो आइए जनाब सूरत नहल स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ہم نے سورۃ نحل کی آیا نمبر 113 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل ہمیں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بے انتہا انعامات سے نوازا تھا، اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک کا لباس بنا دیا اور خوف کا لباس بنا دیا۔ کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑی نعمت تو ان کے پاس کیا تھی؟ آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا رسول منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا نا کہ ڈیفرنٹ بستیوں پہ عذاب آیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ریزن بتائی کہ جب کسی بستی پہ یا کسی انسان پہ یا کسی طرح سے کسی گھرانے پہ یا کسی طرح کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ریزن کیا بتا رہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اب یہاں پہ تو ایک کامن بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ہم نے نہیں ماننا اس کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کو ماننا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، وہ نہ ماننے کے برابر ہی ہے۔ وہ کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کے غضب میں تو انسان آ ہی جاتا ہے نا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو وہ ظالم تھے، کیونکہ قرآن اتنا کلیئر کٹ بات کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہم تو سوچتے تھے وہ بستی کی بات ہے، وہ ملک کی بات ہے، وہاں پہ یہ ہوا۔ وہ ملک کام کرتے 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 ہمارے اپنا ایک جو گھر ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف، وہ 3-4 بچوں والا گھر ہوتا ہے، یا جو بھی جتنے بھی بچے ہیں، تو ادھر وہ بات آ جاتی ہے۔ اچھا ان سے بھی نکال دو تو اپنی ذات کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ، یہ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ سورۃ نحل جو ہے نا، اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان شکر گزار نہ ہو تو پھر اس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا۔ ہم کتنی آیات سے دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں، اس کی لسٹ آپ بنائیں تو نعمتوں سے ہم بار لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ آج کی انشاءاللہ آیات میں بھی میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ بھی ایسی آیات آ رہی ہیں ان کو پن پوائنٹ کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں فَقُلُوا، تو پس کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو رزق دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے کھاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے نا، اور سب سے بڑی نعمت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت تھی مسلمانوں پہ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا ذکر کیا کہ دیکھو فَاكُلُوا، جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ، لیکن کیا کھانا ہے؟ حلالًا طیبا، جو حلال ہوگا اور پاک ہوگا۔ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ اب ادھر بھی غور آپ نے کرنا ہے کہ حلال تو ہے نا، حلال جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ حلال مال جو ہے کمانا ہوتا ہے، جو جیسے کمائی بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو، اور طیب کیا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھانا، اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا کسی بھی چیز کو۔ اب یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا نا، آگے جا کے ڈیفرنٹ اور بھی چیزیں آئیں گی۔ تو حلال مطلب اور طیب کا مطلب کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کہی ہیں، اس کے لیے جو ذرائع ہیں، آپ کے جو فار ایگزامپل جو جاب کرتے ہیں آپ، یا آپ نے بزنس کیا ہے، یا کوئی بھی آمدنی کا ذریعہ ہے نا، وہ آپ کا حلال ہونا چاہیے۔ اگر وہ حلال نہیں ہے تو وہ طیب بھی نہیں ہے، اور وہ پھر کھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی بات یہ کیوں آگے جاتی ہے کہ حلال کھاؤ طیب کھاؤ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ بھی اگر حلال نہ ہو، حرام کا انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے یا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دے، 40 دن کی عبادات قبول نہیں ہے۔
और इबादत क्या है? 40 दिन की ना नमाज कबूल, ना दुआ कबूल, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई रहमत हमारे ऊपर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और एक लुकमे की ये मैं बात कर रही हूँ, और जब जिसके घर में अगर कोई ऐसा रिस्क आ रहा है जो हलाल नहीं है, तैयब नहीं है, तो आप सोचें कि उस घर में फिर बंदा कई दफा देखता है, देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं कि हमें पता होता है, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम लोगों के साथ भी मामलात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तस्बीहां भी सारा दिन ले लेके फिर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कमाई का जरिया जो होता है वही ठीक नहीं हो रहा होता, उधर से कोई गड़बड़ आ जाती है। फिर हम रोना शुरू हो जाते हैं, या अल्लाह मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, मैंने तो अब ये काम करना शुरू कर दिया, ये मेरी अभी भी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, मेरी अभी भी ये चीज़ें मुश्किल में पड़ी हुई हैं। तो हमें ये छोटी-छोटी बातें जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, इनको अंडरलाइन करके गौर से सोचना चाहिए कि अच्छा क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें खुद ही से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हें तकलीफ में डालूँ, मुसीबत में डालूँ, लोगों तुम्हारे अपने अमाल काफ़ी हैं जो तुम्हें मुसीबतों में डाल देते हैं। तो ये एक इट्स नॉट द होल पार्ट, हर चीज़ का आप देखिए, जब अल्लाह को राज़ी करने वाली जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं ना, उसकी शाखें हैं, जैसे कि अगर हम ये सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं तो एक चीज़ इतनी गलत कर देते हैं कि वो सारे को मलिया मेट कर देती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात बता रहे हैं कि हलाल और तैयब खाओ, वशकुरू नेमत अल्लाह, और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। अब हलाल और तैयब के बारे में एक हदीस में आपसे शेयर करती हूँ, बुखारी की हदीस है, 52 नंबर है उसका, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, और इन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुबा वाली हैं, और जिनको बहुत से लोग नहीं जानते कि वो हलाल है या हराम है। हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें आती हैं, तो फिर हम क्या करें? अगर हमारे कहीं पे भी रसूल अल्लाह ने देखिए कसूल बता दिया कि कहीं पे आपको थोड़ा सा भी शक हो कि ये पता नहीं हलाल है या हराम है, तो फिर मैं क्या करूं? अब शक तो आ गया ना। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था, फिर जो कोई शुबा की चीज से बच गया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो कोई इन शुबा की चीजों में पड़ गया उसकी मिसाल उस चरवाहे की सी है जो शाही चरागाह के नज़दीक अपने जानवर को चराता है, और करीब है कि वो कभी शाही चरागाह में घुस जाएं और शाही मुजरम करार पाएं। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है, अल्लाह की चरागाह इस ज़मीन में उसकी हराम करदा चीज़ें हैं, बस इससे बचो। और सुन लो कि बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा तो सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ ये टुकड़ा बिगड़ गया, सुन लो कि वो टुकड़ा सारा जिस्म बिगड़ गया, और वो टुकड़ा इंसान का दिल है। अल्लाह अकबर। देखिए, ये वाली चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि कभी हम बहुत दफ़ा ये होता है कि पता नहीं ये चीज़ ठीक है कि नहीं। जैसे बात चीज़ें मकरूह होती हैं, जैसे हम श्रिम्प खाते हैं, राइट? तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, या हमारे इवन लेन देन के मामले में या कुछ भी ऐसी बात होती है, तो अगर कहीं पे शक हो ना, उससे बच जाए कि ठीक है, दफ़ा करो जी, मुझे करना ही नहीं है, मैं ऐसे ही खाम खा करके तो कम, ये तो हराम तो इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं वो नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क ही नहीं ले सकता कि एक नवाला भी अगर मेरे अंदर जाता है या मेरी औलाद के अंदर चला जाता है, तो 40 दिन की नमाज नहीं है, तो ये तो इतना ज़्यादा लेके मैं किधर जाऊँगा, तो मुझे ये करना ही नहीं है। एक सीधा सा रूल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समझा दिया ना हमें, यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दिया। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वशकुरू नेमत अल्लाह, कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। अब शुक्र अदा करने का, जैसे मैंने कहा था ना कि ये पूरी सूरा में आपको बार बार शुक्र के बारे में मिलेगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए आदम के बेटे, तू क्यों कर नेमत इलाही का शुक्र अदा करने से बाज रह सकता है, हालांकि शुक्र के नतीजे में इससे कहीं बड़ी नेमत तुम्हें अता हो जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने कोई एक नेमत दी है, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा कर लें, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि वो उससे बड़ी नेमत अता करेंगे। तो यही बात उन्होंने कही कि कैसे तू कैसा इंसान है कि जब तुझे कोई नेमत मिलती तो शुक्र ना अदा करे, जबकि तुझे पता है कि इससे बड़ी नेमत मिल जाएगी, ताकि इससे बड़ी, अच्छा, लिहाजा तू हमेशा हर नेमत का शुक्र अदा करता रहे ताकि इससे बड़ी नेमत तुझे मिल जाए।
सूरत इब्राहिम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। और फिर वला इन कफ़रतुम, अगर तुमने नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब कैसे आता है, जो नाशुक्रे होते हैं ना उन पे फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, फिर मैं वही कहूँगी कि ये खाने पीने की बातें हैं। फिर आगे जाके हम सूरत पढ़ेंगे, हम सूरत आल राफ तो पढ़ चुके हैं ना, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रेगुलर ज़िंदगी में जो चीज़ें के बारे में कहा कि ये हराम है, इनके पास ना जाना। कितनी दफ़ा मैं आपको समझा चुकी ना, वो वाली भी आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में ये कहा था कि इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन वाली है, वो आएगी आगे भी, मैं आपको डिटेल थोड़ी सी, इट्स जस्ट रिमाइंडर्स, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए शुक्र के लिए ना, अगर आप अपनी ज़ात में ही देखना शुरू कर दें, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरे हाथ, मेरी ज़ुबान, मेरे पाँव, हर चीज़, छोटी छोटी नेमतों को, अच्छा मैं इनका शुक्र कैसे अदा करूँ? हम इतनी नेमतें हैं कि हम सारों का शुक्र नहीं अदा कर सकते, लेकिन मैं एटलीस्ट कोशिश तो कर सकती हूँ ना। तो मेरी आँखों का शुक्र क्या है कि जिसने दी हैं, उस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस चीज़ से मना किया है, मेरी आँखें वो चीज़ ना देखें। जो बात